کو دہشت گرد ٹیگ کرنا چھوڑ دیں. یہ ہمارے لوگ ہیں اور اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی عزت کریں؟ اگر پاکستان میں چلنا ہے تو یہاں آئین پہ عمل ہونا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل ہونا ہے. آپ کی بات جو ہے نا یہ ایک قیاس آرائی اور ایک ایسی بات ہے کہ آپ کے خیال میں ان کو روکا گیا. کیوں روکا, کس نے روکا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, وزیر اعلیٰ نے تو نہیں روکا. ٹیکس دیتی ہے یہ قوم, اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم. اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا. 2/3 اکثریت نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان. القادر ٹرسٹ کیس اور آج 9 مئی کے کیس میں بھی پروسیڈنگ ہوئی اندر. ابھی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. پہلے تو عمران خان صاحب کی بات سب سے اہم ہے, وہ کر کے پھر اپنی ایک بات میں کرنا چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی. عمران خان صاحب نے آج مجھے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے کہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حکومت حملہ آور ہوئی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ظاہر ہے اشارہ جو تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ہمارا حق تھا ریزرو سیٹس کا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر وہ احتجاج کی کال دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو خدا نہ خواستہ ملک اللہ نہ کرے سرزمین بے آئین ہو جائے گا. پھر تو انارکی کی سچویشن ہو جائے گی. اگر آج فیڈرل حکومت یہ کر رہی ہے شہباز شریف کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پہ عمل نہ ہو؟ اگر پاکستان میں چلنا ہے تو یہاں آئین پہ عمل ہونا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل ہونا ہے. سیاسی مفادات کی خاطر اگر حکومتیں پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ آور ہوں گی, آج یہ حکومت میں ہے کل کوئی اور ہوگا, ہم ہوں گے کوئی اور ہوگا, یہ روش غلط ہے, یہ روش نہیں ہونی چاہیے. ملک میں کچھ نہ کچھ نظام رہنے دیں, کچھ نہ کچھ آئین پہ عمل ہونے دیں. آج بھی ہمارے جنہیں میں نے صاحبان کے خلاف فیصلہ آیا ہے, ہم اس پہ جو قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ کریں گے. اور ساتھ میں 8 فروری کی بات کرتا چلوں, ٹیکس دیتی ہے یہ قوم, اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم. اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا. 2/3 اکثریت نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان. آج بھی ہمیں اگر ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے, سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, تو ہماری 178, یہ لفظ یاد رکھیے گا, میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں, 8 فروری کے الیکشن کے بعد 9 فروری کی صبح 178 فگر آ رہا تھا ہمارا, 17 فگر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے, اس کے لیے ہم عدالت میں اپنی جدوجہد کریں گے. فیملی ہر تھرسڈے کو ملتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جو ملٹری پرزنرز ہیں وہ پچھلے 15 ماہ سے کس قدر اذیت میں ان کو رکھا ہوا ہے اور کس قدر مینٹل ٹارچر میں رکھا ہوا ہے. یہ وہ پرزنرز ہیں, یہ وہ قیدی ہیں جن کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا. یہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ کیسز میں, جتنے بھی پوسٹ آف 9th میں کیسز کے اوپر آواز اٹھائی گئی سوشل میڈیا پہ, ان میں سب سے کم جو ہے وہ ملٹری پرزنرز کے اوپر اٹھائی گئی. یہ چیز میں تو سب سے ریکویسٹ ہی کروں گی کہ اس وقت پورے پاکستان میں 86 ملٹری قیدی ہیں اور وہ اس وقت اللیگل کسٹڈی میں ہیں, اور وہ اس لیے اللیگل کسٹڈی میں ہیں کیونکہ 1 سال کا فزیکل ریمانڈ جو کہ ہمارا قانون بھی اجازت نہیں دیتا, یہ اس پہ ہے. تو سپریم کورٹ سے التجا ہے, بار بار آواز اٹھاتی ہوں, بار بار کہتی ہوں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کیس سنیں, کیونکہ کیس میں چھٹیوں میں اگر مخصوص نشستوں کے کیسز سنے جا سکتے ہیں, الیکشن پٹیشن سنی جا سکتی ہیں, تو یہ جن کیسز میں انسانی حقوق کا سوال ہے, بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہے, پرزنر رائٹس کا سوال ہے, فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن ہماری گارنٹی کرتی ہے, تو اس میں اتنی تاخیر کیوں؟
1 साल बाद भी हम उधर ही खड़े हुए हैं कि आया मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इस चीज़ का फैसला करें। 145 पेजेस का बड़ी खूबसूरत जजमेंट है जो कि 5 मेंबर बेंच ने दी थी, उसको अपहोल्ड करें और इन लोगों को आज़ाद करें या फिर सिविलियन कस्टडी में दें, ताकि इनको सिविलियन कोर्ट जो हमारी ATC दहशतगर्दी के ट्रायल्स जहाँ सबके ट्रायल्स हो रहे हैं वहाँ पर ही इनके ट्रायल्स हो रहे हैं। अब क्यों उठाए? तो सिर्फ सवाल जो है, सवालिया निशान कॉन्स्टेंटली हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर उठते हैं कि अपने ही लोगों को तंग करना छोड़ दें, अपने ही लोगों को दहशतगर्द टैग करना छोड़ दें, ये हमारे लोग हैं और अगर आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी इज्जत करेंगे। तो आई थिंक ये रेसिप्रोकल होता है, वाइस वर्सा होता है, तो इसको वाइस वर्सा ही रहने दें ताकि आप लोगों की भी इज्जत बरकरार रहे और आवाम की भी रहे। कल आपने एक एबीएस कॉर्पस की भी दरख्वास्त दायर की थी, पैलेस भी गया था, वो क्या मनाजिर थे, क्या थाने के अंदर जाने दिया गया, पुलिस हुकाम ने क्या कहा? बिल्कुल, पुलिस तो बड़ी दलेरी से अब कह रही है, हालांकि पूरा दिन PTI के सारे ऑफिसर्स जो हैं उनसे जाके मिलते रहे अवैस यूनुस से, लेकिन पुलिस अब बिल्कुल इनकारी हो गया कि यहाँ पर तो आया ही नहीं, अवैस यूनुस को यहाँ हमारी कस्टडी में था ही नहीं, जबकि पिक्चर्स मौजूद हैं उसको जब रखा हुआ अंदर कस्टडी में थाने में। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। देखें, अवैस यूनुस को इस तरीके से टारगेट करना, क्योंकि वो हर हफ्ते अपनी रैली निकालता था, हर हफ्ते PTI के लोगों को मोबिलाइज करता था, इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ये सीधा सीधा जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और आम शहरियों के साथ हो रही है। अवैस यूनुस तो बेचारा ऐसा बंदा है जो कि उसके सामने कोई उससे बदतमीजी भी करे तो वो आगे से बुरा लफ्ज़ नहीं बोलता, वो गाली नहीं निकालता, वो इस तरह का बंदा है। तो ये तो बेचारे जो है ना, इन्होंने कभी कोर्ट कचहरियाँ नहीं देखी इन लोगों ने, इनको आपने घसीट कर ऐसे जो है वो ज़िल्मी करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी भी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी से आई थिंक सबको डरना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जुल्म बढ़ चुका है, ये जब मिटेगा तो फिर सबकी पकड़ होएगी और इन सबको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा एक नौजवान ओन खोसा है, आप उसकी वकील भी हैं, ये मामला क्या है? उनकी फैमिली से आपका रब्ता हुआ, उनकी फैमिली क्या कहती है, वीडियो डिलीट हो गई है, ये चल क्या रहा है? ओन अली खोसा वाली केस पे तो ना सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि एक कॉमेडियन, एक एंटरटेनर जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, उसका क्या इतना खौफ है कि आपने उसको रात के अंधेरे में घर की दहलीज तोड़कर गिरफ्तार नहीं, अगवा कर लिया। तो ये तो आप देखें, ये कितनी अजीब बात है कि एक बंदा जिसने बिल पाकिस्तान खा गए हुक्मरान, खा गए सारा मुल्क हुक्मरान, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और अगवा करके उन्होंने एक तरह से फ़ायदा ये कर दिया कि वो वीडियो, जो गाना पहले 10 लाख 20 लाख या 25 लाख लोगों ने सुना था, वो अब उसकी व्यूअरशिप मिलियंस में जा रही है। उसके यूट्यूब चैनल से तो डिलीट करा दी, जो अगवाकारों का मेन पर्पस था वो तो अचीव हो गया, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में ये गाना जो है वायरल जा रहा है और इसका भी क्रेडिट हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही जाता है कि इन्होंने गाना बहुत वायरल कराया और उसमें मदद की। अब हमारे जो डिटेंशन में जिनको रखा हुआ है, इलीगल हिरासत में रखा हुआ है, ओन अली खोसा, उनको छोड़ दें क्योंकि मकसद आपका पूरा हो गया। कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई है? आज CCPO को डायरेक्शन हुई है, CCPO को कहा गया कि उसको पेश करें ट्यूसडे को, और CCPO आएंगे, रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि ओन अली खोसा को किसने उठाया और ये किसकी हिरासत में है। उनकी फैमिली ने क्या बताया है जब वो आए हैं, तो उनका तरीका कार क्या था? जिस तरह हम मंजर नाम देख रहे हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है, वो थोड़ा सा बताएं कि उस वक्त उनकी बेटी कहाँ पर थी और ये सारा मंजर क्या था? देखिए, रात के 2 बजे हुए थे और घर के अंदर जाहिर बात है पूरी फैमिली होती है, और जिस तरीके से आपने देखा दरवाज़ा टूटा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है। तो पहले इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया और इन्होंने ये कहा कि नीचे आपकी गाड़ी जो खड़ी हुई है पार्किंग में वो लग गई है, लिहाजा आके ज़रा देख लें कि वो गाड़ी का क्या हाल है। इन्होंने दरवाज़ा उस वक्त नहीं खोला, इन्होंने वेट किए बगैर, जो लोग आए हुए थे अगवा करने के लिए, उन्होंने वेट किए बगैर दरवाज़ा तोड़ा, बार्ज इन किए और अंदर उनकी एहलिया थी, उनकी मिसेस थी, उनके छोटे बच्चे थे जो कि माइनर्स हैं, 3-4 साल के बच्चे थे। उनके सामने जो है बदतमीजी करके, मैन हैंडल करके उनका फ़ोन हिरासत में लिया गया, उनका लैपटॉप हिरासत में लिया गया, उनका डिजिटल कैमरा हिरासत में लिया गया। वो सारी इक्विपमेंट जिससे वो वीडियोस बनाते थे, डिजिटल कंटेंट बनाते थे, असल में मकसद उन चीज़ों को उठाना था, तो वो उठा लिया। ओन अली खोसा को कस्टडी में लिया गया और उसको जो है वो अननोन लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने आपसे क्या बात अभी थोड़ी देर पहले अपने बयान में ही कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ इतनी बात का जो इतलात के शोबे से ताल्लुक़ है, कि मैं आपके सामने इतलात के तौर पे
वो मुशीर इत्तला के तौर पे अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ। हाँ, तो पीटीआई के कारकुनों के लिए आपके कैमरों के सामने बैठा हूँ, वही देख रहे हैं नाम है। तो मैं एक यो मिनट तो बे मुतमईन कम से कम जदे बदिया गया था तब उसने क्यों माँ का गोल गोल चक्कर बोलो। किसने कहा है? क्या मैंने ये कहा है? सुने, रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट की रोशनी में ये ऑर्डर हुआ है। अब जब अगर उस रिपोर्ट में करप्शन होगी तो करप्शन के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पॉलिटिकल डिसीजन होने पर सिंपल सी बात है। करने आ रहे थे प्रेस क्लब में, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें रोका, तो बाद में फिर आपको उनके साथ भेज दिया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शकील साहब को क्यों करने दी? मेरे ख्याल में आपकी बात जो है ना, ये एक कयासाराई और एक ऐसी बात है कि आपके ख्याल में उनको रोका गया। क्यों रोका, किसने रोका? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, वज़ीर आला ने तो नहीं रोका। वज़ीर आला ने तो उनको यही कहा। सीएम हाउस में रुके हुए और वहाँ पे उसके बाद आई थे सीएम हाउस में, तो सीएम हाउस में रुकने का ये मतलब है कि वज़ीर आला ने रोक दिया उसको? यार अजीब बात है, बात को ऐसी खामखा में नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला ने उसको जी किस पर मैंने कह दिया कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हैं तो ये कमेटी उन शिकायत को देखेगी और एहतसाब के जो स्पेशल असिस्टेंट है मुआविन खसूसी ब्रिगेडियर साहब मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनका काम है, उनको सरकारी मैंडेट है, कानूनी मैंडेट है, वो उसके हर बंदे के खिलाफ तफ्तीश करेंगे। यार अब कभी ना मेरा दो बदल का जवाब तो वज़ीर आला देंगे। अगर किसी के खिलाफ करप्शन साबित होती है तो ज़ाहिर है उसको हटाएंगे। अगर कोई खुद इस्तीफा देता है वो भी हट गया तो ज़ाहिर है बदल तो होगा। ये बताएं कि शकील खान ने दुबई हुकूमत पर भी और वज़ीर आला पर भी करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, तो वज़ीर आला के खिलाफ तहकीकात कब शुरू होगा? मेरे ख्याल में उसने इल्जाम नहीं लगाया। अगर आप उनका वो इस्तीफे का बयान पढ़ें तो उसमें उन्होंने बदइंतजामी की बात की है। वज़ीर आला के बारे में उन्होंने बराह रास्त ये नहीं कहा कि कोई वज़ीर आला या कोई और वज़ीर करप्शन में है। उन्होंने बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला और उनका भाई दोनों मुसलसल हर पोस्ट ट्रांसफर में हर किस्म की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें बाकायदा 10 to 15% को लेते हैं। ये बताएं कि इस मुताबिक वज़ीर आला की मुताबिक इस तरह की कमेटी बनाई है? मेरी बात सुनो लिहाज, अगर उन्होंने आपको ये बात बताई है कि वज़ीर आला या उनका भाई जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, तो आपकी बजाय वो मुशीर एहतसाब के पास क्यों नहीं आते? उनको आकर बता दें कि ये इस मामले में वो करप्शन में इन्वॉल्व है। जैसे सबूत अगर कोई है वो सबूत दे दें, चाहे कोई भी हो, चाहे शकील साहब हो, चाहे हमारा कोई कारकुन हो, चाहे कोई आम शहरी हो, आए वो सबूत दे दे, हम उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे, चाहे वज़ीर आला हो चाहे कोई और हो।